तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे नियोप्लेजिया के बारे में। इस टर्म का मतलब क्या है? सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो? दैट मीन्स न्यू. नियो मीन्स न्यू and plasia means it is a process of growth. It is what? It is a process of growth. So अगर आप देखो तो इसका पूरा मतलब क्या बनता है? It is a new process of growth. Now we have discussed one term already, that is hyperplasia. Now what is hyperplasia? This is excess process of growth. Okay, it is what? Excess process of growth. Now ये जो नियोप्लेजिया है ना, it is actually a new tissue growth, we have already discussed. ये जो ग्रोथ है ये अनरेगुलेटेड होगी, इरिवर्सिबल होती है एंड मोनोक्लोनल होती है. सो नियोप्लेजिया की करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट इज अ न्यू टिश्यू ग्रोथ which is irreversible and monoclonal, irreversible, monoclonal and unregulated. ये तीन फीचर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम हाइपरप्लेजिया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्लोनल ग्रोथ? सी, मोनोक्लोनल मीन्स, मोनोक्लोनल का मतलब है कि एक सिंगल मदर सेल से जितने भी न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं वो एक ही मदर सेल से ओरिजिनेट होंगे. सो इट इज अ ग्रोथ ऑफ neoplastic cells originated from single mother cell. Single mother cell. Okay? Now और जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, that is dysplasia. Dysplasia. Now what is the meaning of dysplasia? It is a disorganized growth. This is what? This is disorganized, or you can say a moderately differentiated growth. Moderately differentiated growth. See, these are the cells. Okay, ये ग्रोथ कुछ ऐसे टाइप की होती है, as I am drawing here. Still you can appreciate cells here. So this is what? This is a moderately differentiated growth. And now there is another term, that is anaplasia. Anaplasia. This is abnormal or undifferentiated growth. This is what? Abnormal or undifferentiated growth. Means you can't differentiate के कौन cells हैं, क्या है. See, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. This is what anaplasia looks like. Means you can't even differentiate कि कैसे ये cells arranged हैं, क्या है. Everything is so dearranged here. Now other term that you should know is desmoplasia. Desmoplasia. डेस्मोप्लेजिया क्या होता है? जब ट्यूमर सेल्स के अराउंड बहुत सा स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मोप्लेजिया. सो इसको कैसे लिखेंगे? अबंडेंट स्ट्रोमा अराउंड ट्यूमर सेल is called as desmoplasia. See,
अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये है हमारे ट्यूमर सेल्स, दीज आर द ट्यूमर सेल्स, और इसके अराउंड ये जो भी प्रेजेंट है, दिस इज what? This is stroma. So this is how desmoplasia looks like. Tumor cells surrounded with stroma, abundant stroma. Another term you should familiar of, that is pleomorphism. That is what? Pleomorphism. Pleomorphism मतलब क्या है? Variation in size and shape. Pleomorphism is variation in size and shape. जनरली जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें बहुत सी मतलब उनके साइज की और शेप की बहुत वेरिएशन होती हो. सो दैट्स वाई जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लियोमॉर्फिक होते हैं. Now the next term you should be familiar of. There are actually two terms. One is choriostoma and other is hematoma. One is choriostoma and other is hematoma. Now what is this choriostoma and hematoma? कोरियोस्टोमा मतलब नॉर्मल टिश्यू ऑन एबनॉर्मल लोकेशन. नॉर्मल टिश्यू ऑन एबनॉर्मल लोकेशन. सो अगर हम हेमाटोमा की बात करें, हेमाटोमा क्या है? इट इज एबनॉर्मल टिश्यू ऑन नॉर्मल लोकेशन. इसकी एक एग्जाम्पल है जो आपने याद रखनी है. दैट इज व्हाट? दैट इज पल्मोनरी हेमाटोमा. पल्मोनरी हेमाटोमा. ओके. नाउ जनरली जो न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स होते हैं ना, इनको दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं. न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स आर क्लासिफाइड इनटू two broad categories. What are they? One is the benign and other is malignant. Now what is the benign growth? Benign tumors generally जो होते हैं ना, वो एक ही जगह पे localized रहते हैं and वो metastasis नहीं करते. benign क्या होते हैं? एक ही जगह पे localized होंगे. localized, these are localized tumors and they do not okay. Whereas malignant tumors क्या होते हैं? इनमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट होती है एंड ये क्या करते हैं? जहाँ पे भी होंगे ना, ये लोकली इन्वेड कर जाते हैं. दे लोकली इन्वेड्स प्लस इनमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगी. ओके. नाउ व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ benign and malignant? First is rate of proliferation. So generally अगर हम बात करें benign ट्यूमर्स की, तो इनका proliferation obviously they are tumors तो हाई तो होगा, बट मेटास्टेटिक ट्यूमर से कम होगा. सो यहाँ पे रेट ऑफ proliferation इज मोर बट लेस देन मेटास्टेटिक ट्यूमर्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा मेटास्टेटिक के केस में. सेकेंड जो फीचर है दैट इज कैप्सूल. सो जनरली जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है. दे आर कैप्सुलेटेड, दैट्स वाई वो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड होते हैं. बट अगर आप मेटास्टेटिक ट्यूमर्स की बात करो या मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करो, तो यहाँ पे कैप्सूल एब्सेंट होता है और इनकी शेप भी एबनॉर्मल होती है. ठीक है, सिमेट्री नहीं होती इनकी शेप में. थर्ड जो फीचर है दैट इज माइटोटिक एक्टिविटी और माइटोटिक फिगर्स. यू कैन सी mitotic figures
बिनाइन में भी देखने को मिलती हैं बट मेटास्टेटिक में ज़्यादा होती है। फोर्थ फीचर दैट इज इन्वेजन। तो इन्वेजन हमने अभी बोला था कहाँ पे होती है, मैलिग्नेंट में इन्वेजन होगी, वेरस बिनाइन में इन्वेजन नहीं होती है। ठीक है, नाउ विल डिस्कस some important MCQ that can be asked in your questions. See, first one is if they ask you what is the hallmark feature of malignancy? What is the hallmark feature of malignancy? तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? दैट इज मेटास्टेसिस. Metastasis is a hallmark feature. Second question is what is the most important characteristic feature of malignancy? Now they can ask you some important questions. So see, first they will ask you what is the hallmark feature of malignancy. So what is the hallmark feature? That is anaplasia. Anaplasia. Second question they can ask you is most important characteristic feature of malignancy. Most important feature of malignancy. क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? Obviously metastasis. Metastasis is a hallmark feature of malignancy. Third question क्या है? That is malignant tumor that can never metastatize. So ऐसा कौन सा malignant tumor है जो मेटास्टेसिस नहीं करेगा? तो आंसर इज बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन. Tumor that never metastatize. That is what? Basal cell carcinoma, जिसको हम क्या बोल देते हैं? रॉडेंट अल्सर. फ्रॉम योर सर्जरी यू हैव नो कि इसको क्या कहते हैं? रॉडेंट अल्सर. ओके, नाउ we'll discuss about tumor nomenclature. Next topic is tumor nomenclature. So जो ट्यूमर नॉमेनक्लेचर है ना, ये बेस्ड है कि ट्यूमर सेल्स कौन सी लीनिएज से ओरिजिनेट हो रहे हैं. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन lineage differentiation or you can say टिश्यू, कौन से टिश्यू से ओरिजिनेट कर रहे हैं? lineage of differentiation or you can say कौन से टिश्यू से ओरिजिन हो रही है इनकी. ओके, नाउ these tumors are first is lineage of differentiation. लिख लीजिए पहले lineage of differentiation. second is benign, उनकी क्या है? and malignant. so see, first is epithelium. अगर ये ट्यूमर एपिथेलियम से ओरिजिनेट कर रहे हैं तो अगर वो बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर है तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ओमा. और अगर ये एपिथेलियम से जो ट्यूमर ओरिजिनेट करते हैं वो मैलिग्नेंट हैं तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज कार्सिनोमा. ओके, सो कौन कौन से एपिथेलियल बिनाइन ट्यूमर्स हैं?
So first one is adenoma. Second example is papilloma. और अगर हम malignant की बात करें सेम वे में, it is adenocarcinoma and papillary carcinoma. Okay, now the second टिश्यू जहाँ से वो ओरिजिनेट कर सकते हैं दैट इज मीजनकाइमल टिश्यू. मीजनकाइमल टिश्यू. मीजनकाइमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ इनकी. दैट इज बोन, कार्टिलेज, वेसल्स एंड मसल्स. सो जो भी इनके ट्यूमर होंगे उनको हम लिखेंगे. अगर बोन का बिनाइन ट्यूमर है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे? ओमा यूज़ करेंगे हम उसके लिए. और सिमिलर वे में अगर मीजनकाइमल टिश्यू से जो ट्यूमर ओरिजिनेट कर रहे हैं वो मैलिग्नेंट हैं तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सारकोमास. अब क्या क्या एग्जाम्पल है? बोन को लैटिन में हम ऑस्टियम वर्ड यूज करते हैं बोन के लिए. सो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमा. कार्टिलेज के लिए क्या टर्म है? कॉन्ड्रा. सो इट इज कॉन्ड्रोमा. और वेसल्स के लिए एंजियो है तो ये क्या हुआ? एंजियोमा. एंड मसल्स के लिए वी यूज मायो, सो इट इज मायोमा. और सिमिलर वे में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा एंड मायोसार्कोमा. So these are the example of mesenchymal tumors. Now you have to know certain exceptions. Exceptions are there. So what are those exceptions? First is lymphoma. Other is melanoma. And third example is seminoma. सो लिम्फोमा क्या है? ट्यूमर्स ऑफ lymph nodes. Melanoma is skin का tumor and seminoma is what? Seminoma is tumor of testicles. So see, these tumors, इनका end word क्या है? See, oma, oma, oma. Even though ये देखने में आपको लग रहा है कि ये benign tumors है, but they are not. They are malignant tumors. They are the malignant tumors. Okay, so these are the exception you should know. Now there are mixed tumors. Mixed tumors. अब क्या क्या मिक्स ट्यूमर्स हैं? मिक्स ट्यूमर का मतलब क्या है? जब ये ट्यूमर बोथ एपिथेलियम और मीजनकाइमल ओरिजिन होंगे तो इसको हम मिक्स ट्यूमर बोलते हैं. सो एपिथेलियम प्लस मीजनकाइमल इन ओरिजिन आर मिक्स ट्यूमर्स. इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा. अब ये प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर. दिस इज मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर. ओके, सो थर्ड जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज जर्म लेयर ट्यूमर्स. सो हमारी कितनी जर्म लेयर्स होती हैं? दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म, मेसोडर्म
एंड एंडोडर्म। सो जो ट्यूमर इन लेयर से ओरिजिनेट करता है उसको हम बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेराटोमा। अगर तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेराटोमा। इट इज टेराटोमा। ये टेराटोमा ऐसा ट्यूमर होगा जहाँ पे आपको टीथ भी मिलेगा, हेयर्स भी देखने को मिलेंगे, मींस एवरी टिश्यू इज़ देयर बिकॉज तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट कर रहा है। सो ये बहुत गंदा सा ट्यूमर होता है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड एनाप्लेजिया। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स? मेटाप्लेजिया, dysplasia and anaplasia. See, मेटाप्लेजिया में क्या होता है, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। पहले मेटाप्लेजिया है क्या, मैंने आपको उस दिन बताया था। मेटाप्लेजिया इज कन्वर्जन ऑफ वन मैच्योर सेल्स टू अनदर adult mature cell, or you can say from one epithelium to another epithelium is metaplasia, and it is a pre-malignant condition. So अगर हम इसकी रिवर्सिबिलिटी की बात करें, so मेटाप्लेजिया में रिवर्सिबिलिटी होगी कि नहीं? Obviously you can reverse this condition. पर अगर हम डिस्प्लेजिया की बात करें तो obviously still in some cases you can, और कुछ में नहीं भी कर सकते। so positive and negative both. And anaplasia you can't reverse this condition, so a big negative. Okay, now nucleus to cytoplasmic ratio. सो मेटाप्लेजिया में क्या होगा? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो ये नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल मतलब कितनी होती है? इट इज़ 1:3 और 1:4। पर अगर हम डिस्प्लेजिया की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? हो सकता है कि यहाँ पे आपको इंक्रीज न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो देखने को मिले, और हो सकता है नॉर्मल भी हो सकती है। बट अगर हम बात करें एनाप्लेजिया की, तो यहाँ पे जो रेशो होती है दैट इज इंक्रीज्ड। ओके, जनरली यहाँ पे 1:1 हो जाती है। थर्ड जो फीचर है दैट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स कि सेल्स की ओरिएंटेशन कैसे है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। तो मेटाप्लेजिया में ओरिएंटेशन होती है अच्छी, ऑब्वियसली होती है, सो पोलैरिटी प्रेजेंट है। डिस्प्लेजिया में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था डिस्प्लेजिया का। सी, दिस इज डिस्प्लेजिया। आपको पोलैरिटी अरेंजमेंट अच्छा है भी, नहीं भी है कुछ केसेस में, सो इट इज़ 50-50। तो पोलैरिटी कैन बी और कैन नॉट बी। एनाप्लेजिया में तो बिल्कुल पोलैरिटी नहीं है। सी दिस डायग्राम, कोई पोलैरिटी, कोई अरेंजमेंट नहीं है इनका सेल्स का। सो एनाप्लेजिया में पोलैरिटी इज एब्सेंट। नाउ जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज इन्वेजन। मेटाप्लेजिया में इन्वेजन होगी कि नहीं होगी? मेटाप्लेजिया इज अ जस्ट अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ये कोई कैंसर कंडीशन नहीं है। सो यहाँ पे इन्वेजन एब्सेंट होगी। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेजिया की, तो यहाँ पे सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट एनाप्लेजिया में इन्वेजन पक्का प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट फीचर इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, सो मेटाप्लेजिया में डिफरेंशिएशन होगी कि नहीं? इट इज वेल डिफरेंशिएटेड। नाउ सी, वेल डिफरेंशिएटेड से क्या मतलब है? दिस इज द एपिथेलियम,
See how the arrangement of cells is there. This is well differentiated growth. तो ये मेटाप्लेजिया में होगी. डिस्प्लेजिया में ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन व्हाट, इट इज मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड. यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड ग्रोथ होगी. और एनाप्लेजिया में इट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड. Okay, so this is the basic definition between metaplasia, anaplasia and dysplasia. Now we'll discuss about screening of the cancer. Now what is the role of screening? हम स्क्रीनिंग करते क्यों हैं? सो जनरली हम स्क्रीनिंग इसीलिए करते हैं कि कैंसर होने से पहले ही हम जो प्री कैंसरस कंडीशन है उसको फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें. सो क्या है इसका मेन गोल, इज टू आइडेंटिफाई द डिस्प्लेजिया बिफोर इट्स टर्न्स इनटू एनाप्लेजिया. सो रोल ऑफ स्क्रीनिंग इज टू आइडेंटिफाई dysplasia or precancerous condition before it turns into anaplasia or cancerous condition. Got it? Now there are different screening methods that we use. First one is the pap smear. Pap smear हम किसके लिए करेंगे? To identify the case of cervical dysplasia. It is for the detection of cervical dysplasia. सेकेंड टेस्ट जो हम करते हैं दैट इज मैमोग्राफी. Mammography is for what? For the detection of breast cancers. For detection of breast dysplasias. Third is prostate specific antigen. Specific antigen, और इसको हम पास भी बोलते हैं. दिस वी डू जनरली फॉर द प्रोस्टेट dysplasias. Okay, for the early detection of prostate cancer. फोर्थ जो स्क्रीनिंग हम करते हैं दैट इज हीमो ऑकल्ट टेस्ट या फिर कोलोनोस्कोपी. हीमो ऑकल्ट टेस्ट मीन्स हम स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस देखते हैं एंड दिस वी डू जनरली फॉर द कोलोन कैंसर डिटेक्शन. For the early detection of colon cancer. Got it? So these are the various screening methods that we use in different cases. तो students अब हम discuss करेंगे carcinogens के बारे में. सो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो डीएनए को डैमेज करके कैंसर कॉज करेंगे. सो दीज आर व्हाट? These are the agents that damages DNA and cause cancer.
Now there are various kind of carcinogens. क्या क्या है? What are the examples? Chemical carcinogens are there. Chemical carcinogens जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है अल्कोहल. आपको पता है अल्कोहल कैन कॉज द कैंसर ऑफ oropharynx, it can cause the cancer of even esophagus, and it can also cause hepatocellular carcinoma. Cancer of oropharynx, esophagus, and hepatocellular carcinoma. Other chemicals are like alpha toxin is there. Alpha toxin. Now this toxin can also cause hepatocellular carcinoma. It can cause hepatocellular carcinoma, and there is like any nitrosamines are there. Nitrosamines. So these nitrosamines can cause stomach cancer. Okay, so these are the chemicals. Now second, there can be some oncogenic viruses that can cause cancer. So oncogenic viruses, इसके example as you know Epstein-Barr virus. This Epstein-Barr virus can cause what? Nasopharyngeal carcinoma. Nasopharyngeal carcinoma. It can cause Burkitt's lymphoma. It can also cause CNS lymphoma. Other viruses are like HHV8. This virus causes Kaposi sarcoma in AIDS patients. So it causes Kaposi sarcoma. Other viruses is hepatitis B virus and hepatitis C virus. These two viruses generally cause hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma. Now there are some radiations that can cause cancer. We'll discuss about radiation later on, but just get some idea. Generally there are two types of radiation. One is ionizing radiation and other is non-ionizing radiation. So जो ionizing radiations होती है ना, generally they causes like AML, CML, all leukemias, acute and CML is there. और नॉन आयनाइजिंग जैसे कि कोई स्किन कैंसर ये कॉज करेंगी, जैसे बेजल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, से दोज ऑल आर कॉज्ड बाय नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस. नाउ you are familiar with the term proto-oncogenes. So what are these proto-oncogenes? They are the normal gene in our body and they generally code for the proteins that are necessary for the proliferation of the cell. And if there is any mutation in these genes, that can lead to activation of the oncogene, and that oncogene can cause what? Cancer. So proto-oncogenes are normal genes that code for proteins that helps in
proliferation of cells. And if there is any mutation here in the proto-oncogenes, तो उससे क्या होगा, oncogenes बन जाएंगे, and these oncogenes can lead to cancer. Okay, now we are gonna discuss about cell cycle. Cell cycle. So generally in cell cycle there are 4 phases. What are those phases? First is G0 phase, then G1 phase is there, S phase is there, then G2 phase, and then finally M phase. Okay, this G0 phase is also called as resting phase. Resting phase, इसको resting phase इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता. Okay, and G1 phase is called as pre-synthesis phase. It is called as pre-synthesis phase. And S is what? S is synthesis phase. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे DNA synthesis will occur. DNA synthesis will occur. And G1 phase में generally क्या होता है? There is a growth. This is what? This is a growth phase. Growth phase. Then there is a G2 phase. G2 phase is called as post-synthesis phase. It is a post-synthesis phase. And M is the mitotic phase. Mitotic phase में क्या होगा? Mitosis will occur. There is a division of cell. Okay, so these are the various phases of cell cycle. Now, in these phases of cell cycle, checkpoints are present. और वो चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स आर लाइक सेम, जैसे हम जब ट्रैफिक पुलिस वाले लगाते हैं ना चेक पॉइंट, टू चेक वेदर एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट और नॉट, वेदर द पीपल इज़ फॉलोइंग द रूल्स और नॉट. ऐसे ही यहाँ पे सेल साइकिल में वेरियस चेक पॉइंट होते हैं टू सी वेदर एवरीथिंग सेल साइकिल प्रॉपरली चल रहा है, प्रॉपर सिंथेसिस सब हो रही है कि नहीं. नाउ अब कहाँ कहाँ चेक पॉइंट होंगे? जनरली फ्रॉम G1 टू S phase there is one checkpoint, and from G2 to M phase there is one checkpoint. Got it? Now see, अब चेक पॉइंट का काम कौन करेगा? सो चेक पॉइंट, देयर इज वन जीन, I hope you all are familiar with that gene, that is P53 gene. This P53 is the best checkpoint. This is the best checkpoint. अब ये P53 जीन क्या करेगा? ये फर्दर P21 जीन को एक्टिवेट करेगा, और ये P21 जीन फर्दर क्या करेगा? ये म्यूटेशन को चेक करेगा. इट विल चेक फॉर म्यूटेशन. नाउ सी, इफ द म्यूटेशन इज प्रेजेंट, देन व्हाट इज गोना हैपन? म्यूटेशन प्रेजेंट है तो हम पहले उस म्यूटेशन को ठीक करेंगे. मीन्स वी विल डू रिपेयर. फर्स्ट वी विल गोना डू रिपेयर. अगर तो वो म्यूटेशन रिपेयरेबल है तो हम उसको रिपेयर करेंगे. अगर वो रिपेयरेबल है तो रिपेयर करेंगे, और रिपेयर होने के बाद फाइनली हमारा जो सेल साइकिल है वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा. सेल साइकिल कंटिन्यू. सेकंड, अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है,
नाउ रिपेयर इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ रिपेयर इज़ नॉट पॉसिबल तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली इट इज़ अ वेस्ट. म्यूटेशन है, ऊपर से रिपेयर भी नहीं हो रही. आपके पास कोई ऐसा व्हीकल है जो एक तो बिल्कुल टूटा हुआ है, ऊपर से आपने जब मैकेनिक के पास गए रिपेयर करवाने तो वो रिपेयर भी नहीं हो रही, तो अब क्या करोगे? आप उसको वेस्ट कर दोगे ना, मतलब वो जो डंप हाउसेस होते हैं वहाँ पे छोड़ाओगे. तो यहाँ पे क्या होगा? हम इसकी इन सेल्स की एपोप्टोसिस हो जाएगी. देयर विल बी एपोप्टोसिस ऑफ दीज सेल्स बिकॉज ये वेस्ट है. एपोप्टोसिस क्या होती है? प्रोग्राम सेल डेथ और इट इज़ अ सेल सुसाइड. सो दिस इज़ वन मैकेनिज्म if mutation is present. Now generally they can ask you one more thing कि repair कैसे होगी? by one molecule that is GADD45 molecule. This is mainly responsible in repair. And now the second scenario is when the mutations are absent. If mutations are absent, then what you gonna do? सब सही है तो cell cycle will continue. Cell cycle continue. So this is about our checkpoints. Now there are two things you have to remember in cell cycle. One is the cell cycle proliferators and other is cell cycle inhibitors. First is cell cycle proliferators and second is what? Cell cycle inhibitors. Okay. Now what is the meaning of proliferators? They are also called as the pedals of सेल साइकिल. साइकिल में क्या होते हैं? पैडल्स होते हैं ना, तो उस पैडल्स को यूज़ करके आप साइकिल को आगे बढ़ाते हो. सेम वे में विद द यूज़ ऑफ दीज सेल साइकिल प्रोलिफरेटर्स हम क्या करेंगे? सेल साइकिल को आगे बढ़ा रहे हैं. अब इस सेल साइकिल में फर्दर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसमें हेल्प कराएंगे. In case of cell cycle inhibitors, these are also called as the brakes of the cell cycle. These are the brakes. जब आप अब साइकिल चला रहे हो तो वहाँ पे क्या होती है? ब्रेक्स प्रेजेंट होती हैं. जब आप उन ब्रेक्स को अप्लाई करते हो तो क्या होता है? आपका साइकिल वहीं स्टॉप हो जाता है. सेम वे में सेल साइकिल में भी ऐसी ब्रेक्स होती हैं जो कि सेल प्रोलिफरेशन को रोक देती हैं और सेल साइकिल वहीं स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. There are other now we'll discuss what are the cell cycle proliferators and what are the examples of cell cycle inhibitors. So first, cell cycle proliferators. Cell cycle proliferators में cyclins होते हैं. अब ये cyclins क्या हैं? These are the regulatory proteins that are responsible for the progression of the cell cycle. Okay, so these are what? Cyclins are what? They are the regulators of proteins which are required or which controls progression of cell cycle. अब different kind of cyclins होते हैं and ये cyclins एक molecule को activate करके ये सारा प्रोसीजर करेंगे और वो molecule क्या है? That is cyclin dependent kinase. Cyclin dependent kinase. This is an enzyme. And क्या cyclins इसको एक्टिवेट करेंगे एंड फर्दर जो सब प्रोसीजर होगा. नाउ फॉर ईच साइक्लिन इंडिविजुअल साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रेजेंट होता है. सी
अब कौन कौन से साइक्लिन्स हैं और उनके लिए पर्टिकुलर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कौन सा है। तो फर्स्ट साइक्लिन है हमारा डी साइक्लिन, एंड फॉर डी साइक्लिन जो हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यूज करेंगे दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नंबर 4 and 6. ओके, देन देयर इज अ सेकेंड साइक्लिन दैट इज ई के लिए कौन सा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होगा, दैट इज 2. ये जो डी एंड ई साइक्लिन है ना, ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, और फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ पे था, G12S फेज के बीच में. सो G12S फेज के बीच में जो साइक्लिन है दैट आर व्हाट, डी एंड ई साइक्लिन. एंड फ्रॉम अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछें कि फर्स्ट चेक पॉइंट के लिए बेस्ट साइक्लिन कौन है, तो योर आंसर मस्ट बी डी साइक्लिन इज द best checkpoint for G12S phase. Okay, now what are the other cyclins, that is A and B. now अब A के लिए कौन सा cyclin dependent kinase हम यूज करेंगे, that is 2, एंड B के लिए कौन सा होगा, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1. ये दोनों क्या है, A एंड B, दे आर द सेकेंड चेक पॉइंट, दे एक्ट एज अ सेकेंड चेक पॉइंट. और सेकेंड चेक पॉइंट कहाँ पे था, फ्रॉम G2 to M phase. नाउ सिमिलर वे में दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, for G2 to M phase which of the following is the best cyclin. So best क्या होगा, that is B cyclin is best checkpoint for G2 to M phase. Okay, now these are all about the cell cycle proliferators. Now we will discuss about cell cycle inhibitors. अब सेल साइकिल इनहिबिटर्स जो होते हैं इनकी जनरली टू फैमिलीज आर देयर. कौन कौन सी हैं, वन फैमिली इज कॉल्ड एज सिप और किप, वन इज सिप और किप, एंड सेकेंड फैमिली इज व्हाट, दैट इज इंक 4A. Okay, now what are the inhibitors in this CYP or KIP family? So first जो inhibitor आपने याद रखना that is P27. Now other is P57 and P21. So these are the inhibitors in CYP and KIP family. Now what is their function? They generally inhibit which checkpoint? They inhibit both checkpoints. What are the both checkpoints? One is G12S phase वाला checkpoint and other is from G2 to M phase वाला checkpoint. So these inhibit both checkpoint. Now INC4A. For this, what are the inhibitors? That is P14, other is P16 and P18. So they will inhibit which checkpoint? This will inhibit G12S phase वाला checkpoint. First checkpoint को ये inhibit करते हैं. Okay? अगर इनमें से बेस्ट चेक पॉइंट पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इनहिबिटर फॉर फर्स्ट चेक पॉइंट, तो आंसर क्या होगा, दैट इज P16 इज द बेस्ट वन. P16 इज द बेस्ट. एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. नाउ सी, आप इनको याद कैसे करोगे? To remember this, just remember कि सिप और किप में always
जो मोर देन 20 वाले इंक्लूड होंगे और इंक में लेस देन 20 वाले हैं सारे. ओके, C14, 16, 18 these are all less than 20 and SIP-KIP में सब 20 से ज़्यादा है. Now they can ask you कि मैक्सिमम डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होगी. तो मैक्सिमम डीएनए सिंथेसिस होती है हमारे S फेज में. And now you have to remember some cells which are radio sensitive and radio resistant. Cut. Repeat. Now we'll discuss about certain cells which are radio sensitive or radio resistant. So let's discuss radio sensitive cells and radio resistant. So रेडियो सेंसिटिव अगर आपसे वो पूछें विच फेज इज़ अ रेडियो सेंसिटिव, सो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ द फेज विच इज़ रेडियो सेंसिटिव, दैट इज़ G22M फेज इज़ रेडियो सेंसिटिव. एंड रेडियो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, G12S फेज इज़ रेडियो रेजिस्टेंट. Now they can ask you which blood cell is radio sensitive. So what is your answer? Lymphocytes are radio sensitive. Lymphocytes क्या है? Sorry. Lymphocytes are radio sensitive, whereas कौन से cells radio resistant होंगे, that is platelets. Platelets are radio resistant. Third thing, they can ask you which organ is radio sensitive and radio resistant. So organ की अगर बात करें तो radio जो sensitive है that is gonads. Gonads are radio sensitive and जो radio resistant है that is vagina. Vagina is radio resistant. Then they can ask you about the tissue. Which tissue is radio sensitive? That is bone marrow. वो आपसे क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं कि कोई वर्कर है जो कि इतने टाइम से रेडिएशन को एक्सपोज्ड है, तो फर्स्ट कौन से सेल्स इसमें कम होंगे या कौन से सेल्स ज़्यादा डैमेज होंगे या कौन से सेल्स रेडियो सेंसिटिव हैं. तो ऑप्शंस दी होंगी, यू हैव टू चूज़ फ्रॉम दैट. लाइक सच सिनेरियोज विल कम इन द क्वेश्चन. सो अगर रेडियो रेजिस्टेंट टिश्यू की बात करें तो वो क्या है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ न्यूरल टिश्यू. Neural tissue is radio resistant. Okay.